جناب علی خوش آمدید اور نیکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ، اور آج بظاہر ایک بڑی کربناک سی اور بڑی دردناک سی کہانی لگ رہی ہے ہمارے سامنے. اقرار بتائیں گے تفصیلات؟ جی بالکل. حمیرہ ہیں ہماری آج کی نیکی کی مہمان، اور 4 مہینے تک 5 مہینے تک بالکل نارمل زندگی تھی. ابھی آپ پیکیج میں بھی دیکھیں گے ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھیں، ٹک ٹاک ویڈیوز بنایا کرتی تھیں، ایک اچھی زندگی کی رمق تھی. لیکن ابھی جو حالت ہے وہ آپ نے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھی. نیکی سیگمنٹ کا آغاز ہی ان کی تکلیف کے، ان کی درد کے مناظر سے ہوا. لیکن یہ ایک اور طرح کی کہانی ہے. یہ عام طور پر جو نیکی کے سیگمنٹس آپ دیکھتے ہیں، آج ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے سوائے اس کے کہ خدا کے لیے کچھ سیکھ ضرور لیجئے گا اگر ممکن ہو آج کے اس سیگمنٹ سے. کوئی عطیہ، کوئی چندہ، کوئی ڈونیشن آپ سے ریکویسٹ نہیں کریں گے آج کے لیے. آج ایک اور طرح کا معاملہ ہے. ہماری یہ بہن اس حال تک اگر پہنچی ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا کردار جعلی عاملوں کا ہے، ان جعلی پیروں کا، نقلی پیروں کا اور عاملین کا ہے کہ بدقسمتی سے جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی بھی برباد کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں. آج یہ معاملہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک تو یہ جانیں کہ کیا ہوا اور پھر اس کو اب ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، اگین وداؤٹ آسکنگ فار اینی ڈونیشنز انشاءاللہ. ایک پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں. روداد ہماری آج کی مہمان حمیرہ کی کیا ہوا، کیسے ہوا، اس حال تک یہ کیسے پہنچیں، اور مل کر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم ان کو واپس زندگی کی جانب کیسے لوٹا سکتے ہیں انشاءاللہ. پیکیج ملاحظہ کیجیے. 6 مہینے پہلے تک حمیرہ بالکل ٹھیک تھی، صحت مند تھی، ہنستی کھیلتی تھی، سوشل میڈیا پر آپ کی اور میری طرح ایکٹیو تھی، یہاں تک کہ ٹک ٹاک پر کبھی کبھار ویڈیو بھی بنا لیتی تھی. زندہ دل تھی، زندگی جینے کا سلیقہ جانتی تھی. لیکن پھر اچانک اسے ایک پراسرار بیماری نے آن لیا. ایسی بیماری جس کی اذیت ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور جس کا اندازہ شاید کیمرے اور ٹی وی کی دوسری جانب بیٹھ کر لگایا ہی نہیں جا سکتا. ہاتھوں اور پیروں میں رستے ہوئے زخم اور ان زخموں سے اٹھنے والا تعفن. اللہ اس بہن پر اپنی رحمت نازل کرے. وعلیکم السلام. کوئی بات نہیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا ہے، اپنے پیارے لوگوں کو گزارتا ہے اور اس میں ہمت رکھتے ہیں. نہ ہاتھ چلنے، نہ پیر، اپنا کام میں خود نہیں کر سکتی، نہ بال بنا سکتی، نہ منہ دھو سکتی ہوں. میں بس ایسا لگ رہا ہے میں جلدی سے اٹھ جاؤں بس. اور اسے ہاتھوں اور پیروں کا، یہ ہاتھوں میں ابھی ہوا ہی ہے، ورنہ پیروں پہ تھا خالی. پیروں میں تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ مجھے تو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے. بالکل سن ایک دم سن ہوئے ہیں میرے پیر ہاتھ ایک دم. امید تو نہیں چھوڑی نا آپ نے؟ نہیں امید نہیں چھوڑی، لیکن اللہ سے بہت گڑا کے دعا مانگ رہی ہوں میں. اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا انشاءاللہ. بس شاید ممکن ہے خدا نے ہمیں وسیلہ بنانا ہو آپ کی زندگی کی بہتری. ٹھیک ہے نا، رونا نہیں، آپ نے اب ہمت رکھنی ہے، بس آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ بیماری کو ہرا دیں گے اللہ نے انشاءاللہ. نے بتایا کہ وہ مختلف اسپتالوں سے اپنی بہن کا علاج کروا رہے تھے. جناح اسپتال کے ڈاکٹر شفیق، جو اپنے نام کی طرح شفیق تھے، انہوں نے انتہائی تندہی سے ہماری بہن کا علاج کیا. ایک دن انہوں نے بتایا کہ حمیرہ کو 1.5 لاکھ روپے کا ایک انجیکشن لگنا ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اس انجیکشن کا انتظام بھی وہی کریں گے. ڈاکٹر شفیق کی تمام تر کاوشوں کے باوجود حمیرہ کی بہنوں کے اصرار پر اسے زبردستی اسپتال سے ڈسچارج کروایا گیا اور کسی جعلی عامل سے اس کا علاج شروع کروا دیا گیا. پروفیسر شفیق ہوتے ہیں، انہوں نے پھر اپنی 2 ٹیم کو بھیجا. انہوں نے بولا یہ میرا پیشنٹ ہے، آپ نے یہاں اس کو 20 دن 1 مہینہ رکھا. جب وہاں لے کر آئے تو ان کے پاؤں پہلے سوجے تھے، سوجنے کے بعد پھر جیسے جل نہیں جاتے ہیں، پھٹ رہے ہیں اب تو. ہاں وہ جل گئے، جیسے جب پہلے بلیک ہوئے ہیں پاؤں پورے، پھر اس کے بعد چھالے بن گئے پانی کے. اور 6 مہینے پہلے تک یہ بالکل ٹھیک تھی. A1 اقرار بھائی A1. اور ابھی صرف یہ ہاتھوں اور پیروں کا مسئلہ ہے یا اور بھی؟ اب ان کا یہ ایک تو باڈی ان کی جو
पूरी ख़त्म हो गई है। उनको 1.5 महीने रखा प्रोफेसर शफीक साहब के पास, तो उन्होंने मुझसे कहा था हामिद हम आखिरी इनका ट्रीटमेंट करेंगे, एक टेस्ट होगा फाइनल, फिर इनका एक इंजेक्शन लगेगा वो 1.5 लाख का होगा। तो उसके ऊपर मैंने बोला सर 1.5 लाख तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कहने लगा कि यार आप उसके लिए परेशान नहीं हो, वो अरेंज हम खुद करेंगे। मुश्तरक राय सबों की चलती है कि ऐसा नहीं हो कि मैं अगर मेरे साथ है तो घर में फैसला सभी ने करना है। तो उसमें बहनों की जो टीम थी वो थोड़ी सी रूहानियत पे ज्यादा थी उनका अमल। तो वो कोई एक आमिल भी थे, वो भी है, उन्होंने भी 7,500-8 हज़ार रुपए लिए और वो सिफर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं तो हम दिखा के थक गए। बस हुमैरा के भाई का कहना था कि जाली आमिल की झाड़ झनकार से हुमैरा ने ठीक तो खैर क्या होना था, डॉक्टरी इलाज के रुक जाने के बायस उल्टा उसकी हालत खराब होने लगी। अब वो डॉक्टर शफीक से भी शर्मसार हैं और उनका सामना भी नहीं कर सकते। सो हुमैरा घर ही में हर गुजरते दिन के साथ मौत की जानिब बढ़ रही है। इकरार भाई इतनी शर्मिंदगी उनके आगे, वो मुझसे कहेंगे कि यार आप कैसे थे, आप किन चक्करों में पड़ गए, आप तो ला सकते थे। लेकिन इकरार भाई मैं बहुत सारी जगहों पे मजबूर होता हूँ। हमने हमेशा प्रोग्राम सरेआम में भी जाली आमिलों और झूठे पीरों को इसीलिए बेनकाब किया है कि ये लोगों के ईमान और अकीदे के साथ साथ उनकी जिंदगियों से भी खेलते हैं। हुमैरा भी इसी ज़ईफुल एतकादी की भेंट चढ़ गई है। आइए आज के सेगमेंट में मिलकर कोशिश करते हैं कि हुमैरा की जिंदगी बचाई जा सके, क्योंकि उसकी या उसकी बहनों की गलती की सजा खुदा न खास्ता उसे मौत की सूरत में नहीं मिलनी चाहिए। जनाब, हुमैरा आज इस हालत में है और जाहिर है अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला का इम्तिहान, परवरदिगार की आजमाइश, वो सब अपनी जगह, लेकिन जाहिर है हम भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि जिनकी सज़ा हमें या हमारे प्यारों को भुगतना पड़ती है। सो डॉक्टरी इलाज जारी था और बहुत उम्मीद थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब आ जाएंगी। आज उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई अपने तौर पर जो एफर्ट कर सकते हैं माशाल्लाह वो कर रहे हैं, हम देख कर भी आए। इन्हीं के घर में है बहन इस वक्त और बड़ी मुश्किल में है। अगर आप, छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनके करीब आ जाइए और माइक अगर आप, ये हम वो सोशल डिस्टेंसिंग के हाँ, ज़ाहिर है इस वक्त वैसे भी उनका इम्यून सिस्टम, जी हाँ भले करीब बैठ जाइए, आप नीचे बैठ सकते हैं, जिस तरह से आप इजी हो जाए। चलिए, अस्सलामुअलैकुम। मैंने देखा जब पैकेज चल रहा था तब भी आप रो रही थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि जिस परेशानी से आप गुजर रही हैं और एकदम से बिल्कुल ठीक हो इंसान 3 महीने 4 महीने पहले तक और अल्लाह इम्तिहान डाल दे, लेकिन ये आजमाइश है और अल्लाह ने चाहा तो ये ठीक हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि आप खुद, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छा ठीक कर सकता है या कोई आमिल या कोई पीर वो आपको वसीला बन सकता है आपकी शिफा का? आपकी अपनी राय क्या है? मेरा तो ये है कि डॉक्टर साहब भी सही कर सकते हैं। आपको लगता है डॉक्टर साहब ठीक है? हाँ। तो जो इलाज हो रहा था जिन्ना अस्पताल में, वो उससे कुछ बेहतरी आ रही थी आप में? बेटी नहीं आई। बेहतरी नहीं आ रही थी, लेकिन वो एक इंजेक्शन लगना था जो 1.5 लाख रुपए का, हाँ। वो कह रहे थे कि उससे ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि आपको अस्पताल से घर ले आए? बस मैं 1-1.5 महीने रही, बस मेरा दिल है ना खाने लग गया। मेरे कहा मुझे घर लेके चलो बस, क्योंकि ये दवाइयाँ खा खा कर मेरा छाले हो गए थे मुंह में, बहुत तकलीफ में हो गई थी मैं। मेरा क्या बस घर में जाऊंगी तो क्या बस सही हो जाऊंगी। तो घर आके फिर किसी आमिल को दिखाया? किसी, हाँ बिल्कुल दिखाया था। ठीक है, क्या किया उन्होंने? बस वक्त थोड़ी देर आराम आया, फिर ये हालत थी। अच्छा, बल्कि और दूसरा पैर हो गया। दूसरा पैर भी खराब हो गया। हाँ। तो अभी आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? पहले तो वह माशाल्लाह आपने देखा वीडियोस वगैरह भी बनाती थी, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी, अभी कोई काम खुद नहीं कर सकती? नहीं, कुछ भी नहीं। खाना मेरे भतीजे खिलाते, मेरा भाई खिलाता है खाना, मेरी भाभी खिलाती है खाना, यहाँ तक कि बाल सब कुछ मेरी भाभी करती, मेरी बहन करती है। अल्लाह जज़ा दे उनको उसकी। फायदाबाजी करती है और अफीम करती है, बहुत करती है। मेरी भाभी बहुत अच्छी करती है। क्या सोचती हैं, क्या दुआ करती हैं अल्लाह ताला से? क्या करूँ, मैं बहुत अजियत में हूँ, अब तो बहुत परेशान होने लग गई हूँ। मेरी वजह से मेरे बड़े भाई बहुत परेशान है, ये हामिद बहुत परेशान है, ये खुर्शीद भाई परेशान है कि अल्लाह ये सही हो जाए।
बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे हाथ पाँव चलने चाहिए बस, ताकि ये मैं अल्लाह की इबादत करूंगी, नमाज पढ़ूंगी, कुरान शरीफ पढ़ूंगी। मैंने बहुत दुआएं मांगी अल्लाह ताला से। हामिद भाई ये डॉक्टर्स ने क्या तभी अल्लाह ताला ने आपको वसीला बना के भेजा है मेरे लिए। अल्लाह करे आमीन आमीन, बस आप दुआ करें अल्लाह इसका अजर देगा आपको इंशाल्लाह। और ये दुआ खास तौर पे करें कि अल्लाह चुन ले, इंतखाब कर ले अगर हमारा, कि आपको ज़ाहिर परवरदिगार ने अगर शिफा लिखी है आपके लिए और उसमें अगर हम वसीला बन जाते हैं तो इससे इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हामिद भाई भी जज्बाती हो रहे हैं और आई कैन अंडरस्टैंड, ज़ाहिर है भाई हैं, छोटे भाई हैं घर में सबसे, बहन से मोहब्बत भी है, प्यार भी है। हम जब घर गए तो ज़ाहिर है बता रहे थे कि मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि डॉक्टरी इलाज को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स की ओपिनियन थी कि इनको वापस घर ले आएँ और दूसरा तरीका इलाज। अल्लाह बड़ा कारसाज है हामिद भाई, ज़ाहिर है हम सब कोशिश कर सकते हैं। और आज आपके तवस्सुत से अगर लोगों तक ये पैगाम भी पहुंच जाता है, आप तो खुद भी ज़ाहिर है ताल्लुक़ एक तरह से मीडिया से है, कि ये आमिलीन, ये जाली पीर और इन लोगों से भी हमें दूर रहना है। अल्टीमेटली ज़ाहिर है हमें जो साइंस है, जो डॉक्टर्स हैं, इनकी बात को सुनना है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला का जिक्र, अपने तौर पर जो इबादत की जा सकती है, जो दुआ करनी है, इसमें दूसरी कोई राय ही नहीं है, वो सब किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने भी यही कहा कि तवक्कुल और भरोसा तभी अल्लाह ताला पर छोड़ना मामलात को जब आप जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा कर लें। तो मतलब भी उलमाए कराम बैठे थे, वो बता रहे थे कि भाई आमिरीन वगैरह का ये क्या सारा काम किस तरीके से हो रहा होता है, जाली आमिरीन का। तो हामिद भाई जरा हमें तो अंदाज़ा भी हो रहा है आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह मालिक है, अल्लाह बड़ा कारसाज है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर देखिए बहन आपको हाथ से दिलासा भी दे रही हैं, हौसला भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सेकंड टाइम पे ये कहूँगा इकरार भाई का, वसीम भाई का, AR भाई टीम का, सलमान भाई का, सबको शुक्रिया कि अल्लाह की तरफ से वो नज़र इकरार भाई की हम पे पड़ी। मैंने इकरार भाई से कोई कांटेक्ट नहीं किया, जबकि मैं इकरार भाई नहीं जानते थे, लेकिन मैं जानता था इकरार भाई को किसी और हवाले से भी, इस हवाले से भी। लेकिन अल्लाह ने गैबी मदद की। इकरार भाई अचानक आए, उन्होंने देखा जिस हाल में भी थे, बैठे हुए थे। इकरार भाई मैं पाकिस्तान की तमाम बहनों से, स्पेशली हमारी जो लेडीज़ होती है, उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो होता है बड़ा कमज़ोर होता है। मैं सबसे, उसमें मेरी ही बहनें नहीं, हमारे जो पाकिस्तान की जितनी भी माएँ बहनें हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि देखें, आज हुमेरा को देख लें आप लोग। हम पढ़े लिखे होके भी हम समझो बहुत ज़्यादा केयरलेस थे, लापरवाह थे, सब कुछ जानते हुए भी कि यार हम गलत राह पे जा रहे हैं, फिर भी खामोश थे। लेकिन आज आप सब के सब हुमेरा को देखें और नसीहत पकड़ें कि इन आमिलों से, इन बाबाओं से, मैं सबों को नहीं कह रहा, 5 फिंगर इज नॉट इक्वल, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसमें से 2 बहुत अच्छे भी होंगे। मैं लेकिन उनके लिए कह रहा हूँ कि जो 4% लोग हैं, 3% है, जिसमें मैं 5 की बात कर रहा हूँ, तो वो उनके चक्करों में नहीं पड़े और हुमेरा को देख ले। अभी मैं आपको पाँव भी अगर इनका खोल के दिखाता हूँ तो बहुत, मैं बोलता हूँ बड़े दिल के लोग होंगे तो वो देखेंगे। मेरी तो ये जान है, मेरी गुड़िया है। मुझसे बड़े एक मेरे भाई भी हैं, खुर्शीद भाई, जो उन्होंने समझो कि हमारे लिए वो बाप का दर्जा रखते हैं और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। इंडिविजुअली हामिद अकेला नहीं था, उसके साथ उसके भाई थे, 2 बहनें थी। बहनें मेरी सारी बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता मेरी बहनें बुरी हैं, बहनें बहुत अच्छी, उनके अकीदे कमजोर हैं, वो आज भी प्यार करते हैं। बहनों का ये वो ठीक है, उनकी नीयत पे हम शक नहीं कर रहे हो। बेचारियों ने तो अपने तौर पे ठीक सोचा होगा कि चलो किसी से अल्लाह अल्लाह करवाते हैं, किसी के पास ले जाएंगे, कोई तावीज़ धागा, कोई अमल शायद। तो उनकी नीयत पे तो ज़ाहिर है बेचारियों ने अपने तौर पे तो ठीक, जो उनको ठीक लगा। लेकिन यही हम बता रहे हैं कि जो आपको ठीक लग रहा है वो बदकिस्मती से ठीक है नहीं। जो सही रास्ता है वो ये है कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, कुरान पाक पढ़िए, आप अपनी नमाजों की अदायगी कीजिए, इबादत कीजिए, और साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके कहे पर जरूर अमल करें। इकरार भाई आप यकीन कीजिए कि रमजानों में मैं रोजे रखता हूँ, पूरी रात जागता हूँ, सिर्फ एक कोशिश करता हूँ 15 मिनट की नींद लूँ। तहज्जुद जो होती है ना, कहते हैं कि आप अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, उसमें मैं अब कुछ भी नहीं मांग रहा अल्लाह से, मैं अपने लिए भी नहीं मांग रहा, मैं ना अपने बच्चों के लिए मांग रहा, अपनी मिसेस के लिए मांग रहा हूँ। जबकि कुछ पीछे का बैकग्राउंड है, बहन भाई को कुछ देना है, मैं उसके, मैं इसलिए मांग रहा हूँ अल्लाह ताला इसकी जिंदगी दे दे, आमीन। लोग कहते हैं कि तुम्हें इसका सिला, मुझे सिला नहीं चाहिए अल्लाह से, मुझे अल्लाह से सिर्फ इसकी जिंदगी चाहिए। ठीक है, ये बताना कि अभी तो ये जब इनको अंदाजा ये हो रहा है आपके दिन से बाद, अब क्या मसला, हमको अंदाजा हो गया ना ये गलत रास्ते पे चले गए, तो अब चले जाए डॉक्टर के पास। अब ये जरा बताइएगा, जिस तरह आपने बताया डॉक्टर शफीक हैं जो जिना अस्पताल में, उनके असिस्टेंट थी माहिन, डॉक्टर माहिन,
गुड डॉक्टर, बहुत अच्छी डॉक्टर, बहुत हुमैरा का ख्याल रखा। डॉक्टर शफीक भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उन्होंने मुझे 4 दिन के लिए मुझसे कहा था कि हुमैरा को आपको नहला कर वॉश करके लेकर आ जाओ। अब 1.5 महीना हम ऊपर हो गए, 2 महीने ऊपर हो गए। अब इकरार भाई आप जैसी या वसीम भाई जैसी पर्सनालिटी अगर उनसे फ़ोन पे भी बात कर लेती हैं तो उसमें एक तो हमारा केस बहुत मजबूत होगा। तो आप अभी क्यों वापस नहीं खुद जा, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि आप 4 दिन के लिए ले जाएं और फिर वापस ले आइएगा। अब हेजिटेशन है ना, शर्मिंदगी हो रही है, बहुत शर्म सारी है। बहुत ज्यादा। उन्होंने इतनी केयर से ख्याल से इनका इलाज किया और ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन लगना था। कमाल वो भी उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मैं सिर्फ फिक्र नहीं बता रहा हूँ कि लगना क्या है, बात है। वो भी इंशाल्लाह जिना अस्पताल में जो भी उनका सिस्टम है उसके तहत वो अरेंज हो जाएगा। अरे, अरे, अरे। और वो पूरी दिल जमई से इस बहन को ठीक करने के लिए, और सिर्फ उन्होंने कहा कि ठीक है अगर दिल घबरा रहा है तो 4 दिन के लिए आप ले जाएं, लेकिन बहनों ने कहा नहीं आमिल। मैंने एक पेशेंट भी देखा था जो मेरे साथ ही बाहर बैठे हुए थे, वो उस बच्ची को मैंने देखा कि वो चेयर लिफ्ट पे थी। अच्छा, कुछ क्योंकि मेरा 1.5 महीना जिना में रही तो वो बच्ची खड़ी हुई थी, चल रही थी, तो उनकी मदर में समझ रहा, लेकिन वो सिस्टर थी। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा कि आप बहन और इतना प्यार, तो माफी चाहूंगा अपनी बहनों से। तो बहरहाल वो बहन होके उसने बोले मैं 1.5 साल से बोले, लेकिन जब से मैं जिना में आई हूँ डॉक्टर शफीक ने इनको इंजेक्शन लगाए थे, बोले आईसीयू के पेशेंट उस इंजेक्शन से वापस आ अरे गए। यार। बोले सिर्फ 3 कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने पूछा वो बताइए मुझे। बोले एक तो वो बोल सकता हूँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है वो, दूसरा ये कि उनके जो यूरिन जो पास होगी वो ब्लड के थ्रू हो सकती है, गुर्दों में कुछ तो मैंने बोला ये इलाज, बोले इसका इलाज हो जाता है। वो फिर बाद में सिलसिला चल। हाँ। तो अगर डॉक्टर शफीक आ जाते वापस या आप उनसे राब्ता कर लेते हो तो आपको लगता है कि फिर वापस मैं ये जिंदगी 100% इकरार भाई, मैं तो मिनट भी नहीं लगाऊंगा, मैं अच्छा। हुमैरा को पहले लेकर जाऊंगा। लेकिन अभी खुद अगर आपसे कहा जाए तो आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं फेस शर्मिंदा नहीं है कर आप। सकता, उनको मैं फेस बहुत नहीं कर ज्यादा डॉक्टर माहिन से शर्मिंदा हूँ और डॉक्टर शफीक से शर्मिंदा। उन्होंने जिस तरह से मुझे प्रोटोकॉल दिया, मैं नाचीज था, मुझे इज्जत दी, मेरी हुमैरा को बहुत अच्छे अंदाज में देख रहे थे वो। और शायद हम मीडिया के लोगों का एक प्यार होता है लोगों के लिए कि हम लोग काम जरा करते हैं, एक मिनट सिर्फ बात करवा दें। आप ये दुआ कर सकती हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह डॉक्टर शफीक जिसे तूने मसीहा बना के भेजा था, जिसे तूने हमारी, उसको किसी तरह से वापस भेज दे और वो इलाज करे हमारा। ये आप ये दुआ मांगती हैं अल्लाह ताला से? मांगती हूँ। अभी मांगेंगी ये दुआ? अभी नहीं मांगू, अभी भी मांगिए अब अल्लाह ताला से कि या अल्लाह डॉक्टर शफीक को अल्लाह ताला की कोशिश, अल्लाह ताला डॉक्टर शफीक को रहमत बना के मेरे लिए भेजो। मैं उनके पास जाना चाह रही, वही मेरा इलाज करेंगे। लेकिन ये कमाल है ना कि जाहिर है वो इतनी उन्होंने मोहब्बत से इलाज किया कि अब शर्मिंदगी होती है कि एक आमिल की वजह से, एक जाली पीर की वजह से एक डॉक्टर के केयर को, इलाज को छोड़ के आ गए और आज वो नहीं सामने। ये भी इनका बड़ापन है कि वो वरना कह रहे हैं। हाँ जी माइक, मैं डॉक्टर शफीक के साथ साथ डॉक्टर माहिन को जो उनकी असिस्टेंट है। हाँ बिल्कुल, मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक्स। अगर उस वक्त टीवी देख रहे हो तो क्या क्या उनसे कहेंगे आप? अगर डॉक्टर शफीक टीवी देख रहे हैं मैं एग्जांपल मेरे सामने डॉक्टर शफीक है और डॉक्टर माहिन बैठी हुई है, तो थैंक्स अलॉट बहुत बहुत आप लोगों का कि आपने इस 1.5 महीने में हुमैरा को बहुत अच्छा किया था। और वक्त से पहले आपने मुझे इसकी बीमारी बताई थी कि पाँव से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये हाथों से स्टार्ट होगा। जो जो चीजें वो इंजेक्शन के थ्रू लगा रही थी, 3 इनके इंजेक्शन लग रहे थे, 2 पेट में लगते थे, 1 बाजू में लग रहा था, तो ये इनका जख्म रुका हुआ था, इतना डेंजर नहीं था। और जब वो मुझे उन्होंने डीसी किया तो डीसी करने के बाद उन्होंने बोला हामिद सिर्फ इनको टैबलेट्स देना और कुछ नहीं देना। मैंने इतना इनको, ये डॉक्टर माहिन थी और डॉक्टर माहिन ने फिर बीच कुछ चीज़ें मेरी मुझे इतनी मदद की थी, मैं आपको बता नहीं सकता रहा। इकरार भाई, वसीम भाई के बाद मेरे लिए एक फरिश्ता थी डॉक्टर माहिन, और उसके बाद डॉक्टर शफीक थे, क्योंकि डॉक्टर शफीक से मेरी बहुत कम मुलाकात होती थी, लेकिन माहिन जाहिर है वो ज्यादा राब्ते में रहते हैं। तो अभी जल्दी से कुछ कह दीजिए उनको, हमारा सेगमेंट जो है वो बस सर मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं सिर्फ यही वजह थी कि मैं आप लोगों के पास आना नहीं चाह रहा था, और मैं इस ARY के प्लेटफॉर्म के थ्रू और इकरार भाई, वसीम भाई के थ्रू मैं आप लोगों के पास आना चाह रहा हूँ कि शायद आप मुझसे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सके, क्रैश क्वेश्चन जिसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता था आप। चले अब ये समझे आपके सामने ही डॉक्टर शफीक खड़े हैं। ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? कैसी हो मेरा? ठीक हो? बिल्कुल बदल गई हो। अरे भाई रोते नहीं है, बैठे बैठे आप। आइए डॉक्टर साहब प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू।
جزاک اللہ. ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹی وی کے بغیر بھی خدمت کر رہے ہیں اور اتنی کہ آپ کی غیر موجودگی میں جس طرح ذکر کر رہے ہیں. آپ تشریف رکھیے پلیز. بہت وی آر آنرڈ آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو ویری مچ. اسسٹنٹ پروفیسر جنا اسپتال کیا بات ہے. جناب ڈاکٹر شفیق ہیں کیا جن کہنا کا ہم بار بار ذکر کر رہے تھے. حامد بھائی کیا بات ہے, کیا کہنا ہے. دعائیں ایسے بھی قبول, I can't believe it, sir. جی جی دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں. جب ہم دونوں کوریڈور مائک قریب کر لیجیے ڈاکٹر صاحب پلیز تھوڑا. ہم دونوں کوریڈور میں کھڑے ہوئے تھے اور میں آپ سے بات کر رہا تھا. آپ نے بلکہ یہ پرومس بھی کیا تھا کہ ہم جا کے اور 3 دن میں دوبارہ واپس آ جائیں گے. اور انفیکٹ ہم نے آپ کے لیے وہ جو انجیکشن ہے اپنی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے میڈم سیمی جمالی, ان سے بات کر کے وہ ارینج بھی کر لیا تھا. وہ ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کرتی رہی ہیں. وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے آپ کا, اللہ, ابھی بھی ہے, اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ واہ واہ واہ. کیا بات ہے جی. میرا کی ذمہ داری بھی لیں گے اور ان کا علاج بھی. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات ہے, خدا نہ زبردست. خواستہ یہ ایسی سچویشن ہاتھ سے نکل تو نہیں گیا معاملہ؟ اللہ تو بڑا کارساز ہے, لیکن ذرا لیکن 6 مہینے پہلے غالباً نہیں سر, اس کو جو ٹائم ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ابھی 1.5 مہینہ. آپ کے پاس سے آئے ہوئے جب ہمارے پاس سے آپ ڈسچارج ہوئے ہیں. ہم 6 نمبر وارڈ سے آپ کے پاس آئے تھے. جی جی بالکل, مجھے یاد ہے آپ کا اچھی طرح. اور اس وقت کی جو کنڈیشن تھی اس کے مطابق تو ہمارا یہ تھا کہ یہ انشاءاللہ بہت ہی جلدی اور بہت اچھا رسپانس کریں گی, کیونکہ اس وقت بہت لمیٹڈ ڈیزیز تھی ان کی. صحیح, اب پھیل گئی ہے. اب تو جو ہے دیکھنے میں یہ تھوڑا سا پھیلی ہوئی بھی لگ رہی ہے اور تھوڑی سی پیچیدہ یہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب, یہ کیا ہے بیماری؟ یہ بنیادی طور پہ ابھی جو ان کو ہوا ہوا یہ تو گینگرین کہتے ہیں اس کو. تو اس گینگرین کا جو ایک ٹرم ہے کہ کسی وجہ سے بھی ہمارا جو جسم کا حصہ ہے وہ گلنا شروع ہو جائے یا سڑنا شروع ہو جائے تو اس کو گینگرین. یہ بنیادی طور پہ ویسکولائٹس ایک بیماری ہوتی ہے جو شریانوں کی سوزش کی بیماری ہے. اوکے. اس بیماری کے لیے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں 6 مہینے ہیں آپ کے سامنے, اور 6 مہینے میں کہاں سے کہاں. اللہ رحم کرے, اللہ رحم تو کرے. اس میں بس وقت پہ اس کی تشخیص اور وقت پہ اس کا علاج, اور یہ عاملوں اور ان سے جو ہے نا بس یہ جیتی جاگتی کہانی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. آپ یقین کیجئے ایسی شخصیات کے جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ انجیکشن بھی ارینج ہو چکا تھا, وہ رابطے میں بھی تھے, ان کی اسسٹنٹ بھی مسلسل اسسٹ کر رہی تھیں, کیئر بھی کر رہی تھیں ہر طرح سے. تو آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں. ڈاکٹرز تو اس وقت ویسے ہی ہم ظاہر ہمیشہ قابل فخر ہیں, اس وقت اور اہمیت ہے. ہمارا فریضہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کی خدمت کرنا. ہم لوگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. خوش رہیے. زندہ باد. اور جو خوشی حمیرہ کے چہرے پہ اس وقت ہے اور جو اطمینان ہم دیکھ رہے ہیں, بس اب آپ نے کہیں نہیں جانا, اب آپ نے آنا اور ہم انشاءاللہ آپ کا علاج. انشاءاللہ بھائی صاحب اب آپ فوراً بس اس سیگمنٹ کے بعد ہی بس رابطہ دوبارہ بحال کریں اور بس معاملہ ہم ہیں نا, بس انشاءاللہ دیکھ لیں گے, پہنچا بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. سر میں مارننگ آ جاؤں, صبح آ جاؤں لے کے, یہ مجھے کنفرم کیجئے یا بس یہ ہم کر لیتے ہیں کوآرڈینیٹ, بٹ ٹائم جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر میں یہاں سے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ سر. آپ بس آپ ایک منٹ میں رہیے گا تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ بریک پہ جب ہم جائیں تو آپ کو تالیاں بجا کے قوم دیکھے کہ بھائی ایسے شفیق لوگ جو صرف نام کے شفیق نہیں ہیں بلکہ ہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ کبھی یہ سٹوری ٹیلی ویژن پہ ڈسکس ہو رہی ہوگی. ظاہر سی بات ہے, یہ تو پس پردہ رہ کے اپنا کام کر رہے تھے, اور ایسے کتنے ہی ہمارے مسیحا ہیں. تو آپ کو اور آپ جیسے وہ ہزاروں لاکھوں مسیحاؤں کو ہم چاہتے ہیں کہ بھرپور سلوٹ پیش کرتے ہوئے بہت ساری تالیاں کریں, بہت ساری تالیاں ڈاکٹر شفیق صاحب اور ایسے ہزاروں لاکھوں شفیق لوگ کہ جن کی وجہ سے ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایسی قوم کا حصہ ہے جہاں ایسے لوگ ہیں. الحمدللہ. پاکستان زندہ باد اور ہمارے سارے مسیحا پائندہ. سلامت رہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.